good evening. Welcome to Chat with Khwaish, yeah, which sponsored by Noor the Destiny of Hope. Today's episode is gonna be a very exciting episode because the personality whom I have on my platform today is one of the youngest director in Pakistan. He is also been the cover page of so many magazines. He has initiated his music videos Beparwa, and it was one of the hit of his album. I'm so excited to have him on my platform, and also according to him, he says that whichever industry you are, it's most important how you connect to that industry. Don't be in any industry or any work which you don't like. Just for sake, you will never get success. When you have an interest, when you have a research, when you do something great, remember you are into a correct direction. He is really inspiring to us, and the way he is been connecting, it is amazing to share with you all. Not taking much more time, I would like to welcome to him to our platform is none other than Mr. Arsalan from Pakistan, Lahore, who is one of the youngest director over there, and he's gonna share so many things to us only on Chat with Khwaish Wish, sponsored by Do the Destiny of Hope. Mr. Arsalan, to accept our invitation from a short period of time. Welcome to Chat with Khwaish, your wish, sponsored by Noor, the Destiny of Hope. How are you doing today? Thank you, actually, and I'm doing good. How are you? I'm great, Alhamdulillah. Thanks for asking. So, as you're aware, our show will be on air on YouTube, Noor, the Destiny of Hope, every Friday, 5:30 to 6:30. And I hope today's episode will be the exciting one because we have one of the youngest director of Pakistan. So, what do you want to say about that? Thank you. Yeah, and I'm excited too for this. Okay, so let's start our segment number one, which is connecting yourself. It's all about your personality and also all about your profession. So, could you please let us know more about yourself, your professional life, your personal life? How's everything all around with you? I'm Arsalan from Lahore, Pakistan, and I'm a kind of humble person um, because I always मैं हमेशा जो है कोशिश करता हूँ कुछ सीखने की to learn something and Okay. Being a profession. As you know, I'm working as a film director and running my own production house here in Lahore. And there are many things more. Uh, I am running my own brand. Actually, we just recently started, and I'm a singer too. I can sing also. It's a kind of hobby actually, and many more. So, being a, if it's about my family, I am the eldest one in my siblings. I'm Arsalan from Lahore, Pakistan, and I'm working as a film director. And I can also sing. I'm a singer too. And if it's about my family, I'm the eldest one, so I have certain responsibilities. Like जो होता है सबसे बड़े के लिए. I have to look after my parents. I have to look after my siblings too. So there are a lot of things. Okay. If it's about my mother, I'm really very connected to her, and because if अगर मैं आज यहाँ किसी भी पॉइंट पर हूँ मैं शायद मैं अपने जितने भी शोज मैंने आज तक अटेंड किए हैं मैं यही बात कहता हूँ कि आई लर्न अ लॉट फ्रॉम हर एंड everything is just because of her and if it's about my father so आप कह सकते हैं कि मेरे पापा जो हैं he spent his like 25 years in abroad so उन्होंने हमें सपोर्ट किया फाइनेंशियली morally support किया हमें हमारी मदर ने so they both are equal for me. Okay, so it's really excited because कुछ अभी new things निकलने वाले हैं आपके बारे में. The first thing I want to like to know that as a transformation, आप director भी हो, actor भी हैं, and you are in music. Now you have started your business. So how easy, कितना easy है आपको like ये transformation होने का आपके life में? How changes it happen so fast? कुछ भी easy नहीं होता. Actually, when I started,
आपको शायद पता होगा that I've done software engineering और my study domain was totally different from my profession domain. You know, it's all about your environment. कि हमारा environment जैसा होगा हम वैसा सोचेंगे और हम फिर उस जो है ट्रैक पर चलना शुरू हो जाते हैं. मेरे इंटरेस्ट कुछ डिफरेंट थे. ड्यूरिंग माय चाइल्डहुड मुझे फिल्म मेकिंग का शुरू से एक मैं हमेशा क्रेविंग रहती थी उसकी. इनफैक्ट व्हेन इन द एरा ऑफ विंडोज एक्सपी, आपको शायद याद होगा, किसी जमाने में हम विंडोज एक्सपी यूज किया करते थे और मैं तब भी जो है एडिटिंग बहुत अच्छी कर लेता था. आई हैड माय ओन डिजिटल कैमरा और हम प्रैक्टिस किया करते. मुझे अपने बहुत सारे शौक थे. मैं काफी ज्यादा डिफरेंट शॉट्स लेता था एंड आई यूज टू एडिट देम एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स. फिर ड्यूरिंग माय स्टडीज मेरा कुछ एनवायरनमेंट, मेरे फ्रेंड जोन कुछ ऐसा था कि जहां से मुझे स्कोप मिल गया, स्कोप ऑफ वर्क. मैंने अपना जो है स्टडीज के दौरान ही अपनी लाइफ को प्रोफेशनल तरीके से गुजारना शुरू कर दिया था. मैन्युफैक्चरिंग की तरफ भी साथ साथ हम लोग इस तरह से आ गए कि हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं जिनके लिए हम लोग डिजिटल मार्केटिंग की बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं. वी ऑलवेज यूज टू थिंक लॉट ऑफ थिंग्स लाइक एक कैंपेन डिजाइन करनी है, ऐसे करना है, वैसे करना है. और देन आई थॉट कि यार हम लोग अपने क्लाइंट्स के लिए इतना कुछ करते हैं तो लेट्स जस्ट डू इट फॉर माई सेल्फ ऑल्सो. सो दैट वॉज द आइडिया. और मेरे चाचू जो हैं उनकी जो है मैन्युफैक्चरिंग में काफी ज्यादा उनकी अपनी फैक्ट्री है फार्मास्यूटिकल्स की. सो ही हैज अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन दैट. सो आई थॉट कि यार इस चीज को भी कंटिन्यू किया जाए. देन उसी चीज से जो है एक थॉट प्रोसेस निकला. देन आई शिफ्टेड माई सेल्फ टूवर्ड्स ऑर्गेनिक. और राइट नाउ आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक रनिंग माई ओन प्रोडक्शन हाउस, working as a film director, and running my own brand. And I'm a good marketer, especially. Well, that's good. कहते हैं ना, an idea can change your life. You don't know. जब क्लिक होगा, कहाँ क्लिक होगा, you never know. Just an idea that's happened with you. So mostly your idea is your transformation change. With that note, what made you to decide be an actor and a director? It's a good question. Actually, it's all about inspiration. कुछ लोग थे जो मेरे आइडियल थे, लेकिन ज्यादा जो है क्रेडिट जाता है टू माय फ्रेंड्स एंड टू द पीपल जिन्होंने हमेशा मेरे काम को लाइक किया. सो ये चीज व्हेन आई स्टार्टेड, तो तब से ही मुझे लोग जो है मेरे काम से इंस्पायर होते थे. टू बी वेरी ऑनेस्ट, when I edited my first video, so no one can even imagine that that is my first work that I'm showing in front of them. So मुझे then खुशी होती थी when people used to like my work. So right after my studies, in fact my parents was asking me जब मेरी डिग्री कंप्लीट हुई, then what's your plan now? So मेरा यही जवाब था, I'm already on my track. So I just मुझे बस move on करना है. तो बस that was the thing कि जिससे मुझे लगा कि I have to be a good director. And मेरी achievements कुछ ऐसी हैं जिसमें मैं कह सकता हूँ कि I can direct very well. So आपको पता है कि being a director you are the director of the whole team actually. तो acting acting एक ऐसी चीज है कि ये आ जाती है. ये चीज इतना डिफिकल्ट नहीं होता. डायरेक्टर के लिए भी एक्टर होना जरूरी होता है, बिकॉज उसको पता नहीं होगा एक्टिंग का, तो वो कैसे डायरेक्ट कर सकता है चीजों को. तो ये सारी चीजें थी जो कि इस पूरी जर्नी का पार्ट था और इसने मुझे जो है हिम्मत दी. सो आई स्टार्टेड एवरीथिंग. सो विद दैट कनेक्टिव ओनली, आप किस चीज से ज्यादा इंस्पायर हुए व्हिच मेड यू टू बिकम एन एक्टर प्लस सिंगर एंड डायरेक्टर? किस चीज से ज्यादा इंस्पायर हुए आप? हाउ डिड इट हैपन इन योर माइंड? There is not a single personality actually. If it's about my singing, so to be honest, मैं किसी से इंस्पायर नहीं हुआ था. मुझे शुरू से शौक था. I still remember that day when I was in 9th standard और बच्चा था. बल्कि मैं आपको एक और चीज बताता हूँ कि I spent 6 years of my life in boarding. मैंने मिलिट्री कॉलेज मरी से जो है
6 साल आपको पता है बोर्डिंग लाइफ दैट इज रियली सो टफ। तो मुझे याद है हमने छुप के एक फोन रखा होता था, मुझे पता नहीं एकदम जोश आया, मैंने अपनी मामा को कॉल की एंड देन मैंने कहा कि एवरीवन शुड गेट एन अपॉर्चुनिटी कि उसको उसकी लाइफ में कुछ अगर करना है तो मौका दिया जाना चाहिए पेरेंट्स को कि प्लीज टेल अस कि आप क्या करना चाहते हो, तो पेरेंट्स जो है फिर सपोर्ट करें मॉरली उस तरफ। सो Exactly, you're आई right. थिंक कि मैं एग्जैक्टली तो मैंने कहा कि आपने मुझसे आज तक यू नेवर आस्क्ड मी लाइक दिस, तो मैं खुद ही बता देता हूँ आई वांट टू बिकम अ सिंगर। और मुझे सिंगिंग का बहुत शौक है, और इनफैक्ट उस टाइम पर स्मार्टफोन्स नहीं थे, और बड़ी मुश्किल से मैंने 2-3 स्टूडियोज के नंबर कलेक्ट किए इंटरनेट से एंड देन आई कॉल्ड देम एंड आई आस्क्ड द होल बजट फॉर दैट। मुझे कुछ इतना ज्यादा आइडिया नहीं था एंड मेरी मामा ने खैर मुझे तब बहुत डांटा था बिकॉज मैं वो एक स्टडीज चल रही थी और मैं था भी बोर्डिंग में, तो उनके जहन में था कि पता नहीं ये किन किन सोचों में जो है जाना शुरू हो गए। तो व्हेन जब मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया तो सिंगिंग करियर एक ऐसा था कि आई स्टार्टेड फिल्म मेकिंग फर्स्ट। तो मुझे लगा कि यार ये तो अब घर की खेती है, फिल्म मेकिंग में जाहिर है मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनके लिए मैं वीडियो शूट किया करता था। नेटवर्क स्ट्रांग होता गया इन माय डोमेन, काफी ज्यादा म्यूजिक कंपोजर्स जो है जिनसे मेरी मुलाकात हुई, जिनके साथ मेरे जो है एक वर्क रिलेशनशिप बिल्ट हुए। तो मेरे लिए देन इतना ज्यादा मुश्किल नहीं था कि मैं एक अपने अच्छे सॉन्ग्स जो हैं उसको रिलीज कर सकूं, क्योंकि म्यूजिक कंपोजर्स के साथ एक अच्छा रिलेशन था और मुझे पता था कि मैं अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज कैसे कर सकता हूँ। एक नए बंदे के लिए जिसको इस फील्ड के अंदर इतनी इंफॉर्मेशन ना हो या उसका इतना ज्यादा रिलेशन ना हो, उसके लिए जरा ज्यादा मुश्किल होता है। बट फॉर मी दैट वाजंट दैट मच डिफिकल्ट बिकॉज आई वाज ऑलरेडी इन द सेम फील्ड। और इसके बाद जो है व्हाट Rest वाज all योर our क्वेश्चन history. एक्चुअली, मैं बहुत ज्यादा Yeah, rest all हाँ is history. Sare history, like what all you have done, the achievements, everything. Okay. So is entertainment business पे, is showbiz business, it's not easy to टिकना वहां पे रहना, adjust होना लोगों के साथ, it's not so easy. So what are the difficulties have you faced in during this all career step? क्या मुश्किल आपने फेस करा हुआ है? इन मैं सोशली मेरा सोशल सर्कल शायद बहुत बड़ा होगा, बहुत लोग मुझे जानते होंगे, बहुत लोग मुझे जानते हैं लेकिन मैं उनको शायद नहीं जानता हूँ। मैं थोड़ा सा आई एम अ काइंड ऑफ एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट बोथ। तो Okay. आई नेवर फेल्ट के आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल विद एनी ऑफ पर्सनालिटी जो कि शोबिस से लिंक्ड होगी, बिकॉज मेरा ज्यादातर जो काम से काम रखने वाला सीन है। इन कभी Okay. शूट प्लान हुआ है, हम लोग शूट पे गए हैं, काम खत्म हुआ, मेरा फोकस ही बस इस चीज पर होता है कि हमारी शूट कॉल टाइमिंग्स ये हैं, हमारी पैकअप टाइमिंग ये हैं, हम लोग अपने स्केड्यूल पे हैं या नहीं है। मेन जो है मेरे साथ टीम वर्क में मैं बिल्कुल बिलीव करता हूँ कि मैं जिस टीम के साथ काम करता हूँ मेरी कोशिश होती है कि मेरा उनके साथ कंफर्टेबल होना जरूरी है। मेरा उठना बैठना शोबिस में बहुत कम है, तो मैं इतना ज्यादा फील नहीं करता। जो मेरी पर्सनल लाइफ में लोग हैं जिनके साथ मैं उठता बैठता हूँ, आई एम ऑलरेडी कंफर्टेबल विद देम। Okay. So how do you manage your personal life and your professional life? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। मैं प्रोफेशनल लाइफ को हमेशा, इफ देर आर टू लेवल्स, दिस इज माय प्रोफेशनल लाइफ, दिस इज माय पर्सनल लाइफ, तो थोड़ा सा मैं इस तरह से रखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि पर्सनल लाइफ एडजस्ट हो जाएगी किसी ना किसी तरीके से, प्रोफेशनल लाइफ को मुझे फोकस करना पड़ेगा। नहीं मैनेज होती दोनों चीजें फौरन, बिकॉज आई एम नॉट जस्ट डूइंग अ सिंगल वर्क, आई हैव टू लुक आफ्टर फॉर मैनी थिंग्स इन, पर अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी अगर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, द ब्रांड जिस बारे में मैंने आपको बताया विच जस्ट रिसेंटली स्टार्टेड, तो उस चीज को भी साथ साथ मैनेज करना, अपने प्रोडक्शन हाउस को भी साथ साथ देखना, बीइंग अ डायरेक्टर आपको शूट्स को भी साथ साथ मैनेज करना, बीइंग अ सिंगर आपको अप टू डेट रखना पड़ता है ऑन योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उसको भी साथ साथ देखना। तो जब इस चीज में पर्सनल लाइफ की बात आ जाती है तो वो बहुत कम टाइम मिलता है आपको, तो मैं हमेशा जो है लैग कर जाता हूँ अपनी पर्सनल लाइफ में उस तरीके से अपनी इन्वॉल्वमेंट रखने के लिए जो कि मुझे रखनी चाहिए। बट प्लान कर रहा हूँ
because I am at my struggling stage. तो इंशाल्लाह the day will come जब मैं अपनी personal life और professional life दोनों को balance रख के चलूँगा. Yeah, it happens because now also here it's not that like take me as an example. When I stay here alone, it takes very hard time because आप अकेले काम भी कर रहे हो, your home, it's not easy. सब लोग कहते हैं हाँ कहने में easy होता है, पर जो बीतता है ना, जो गुजरता है ना, उससे उसको पता चलता है कि हाँ कितना hard is getting to balance the things. With that बेशक, note, अगर किसी को इस इंडस्ट्री में आना है, फॉर एग्जाम्पल एज ए डायरेक्टर, एज ए सिंगर, एज ए ऑल दिस फील्ड, तो आपका क्या एडवाइस होगा लोगों के लिए, लाइक व्हाट शुड दे डू इन ऑर्डर टू कम टू इन दिस इंडस्ट्री, लाइक व्हाट इज एडवाइस? ये दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन. बहुत लोग मुझे कहते भी हैं कि मुझे जो है एक्टर बनना है, मुझे डायरेक्टर बनना है. दो ऑल यू नीड इज योर इंटरेस्ट. जबरदस्ती अगर आप सिर्फ इसलिए बनना चाहते हो क्योंकि आपको ये फील्ड अच्छी लगती है, तो आई गेस के मुश्किल हो जाएगा. तो अगर आपका इंटरेस्ट है इस फील्ड के अंदर, तो आपके लिए कोई भी जो है हर्डल्स तो हर फील्ड में आते हैं. लाइफ इज ऑल अबाउट हर्डल्स. मुश्किलात आती हैं, बट अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपके लिए उन चीजों को हैंडल करना आसान हो जाता है. सेकेंडली, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपको सिर्फ ये फील्ड अच्छी लगती है और आपको दो चार लोगों ने कह दिया कि यार तू एक्टर बन जा, तू बहुत गुड लुकिंग है, तो वो फिर मुश्किल हो जाता है. बिकॉज कंपटीशन आपको पता है हर जगह पर है, और अचीवमेंट्स आपको तभी मिलती हैं जब आप अपना इंटरेस्ट अपनी डेडिकेशन में डाल देते हो. तो वो फिर आपके लिए जरा आसान हो जाता है. तो मैं यही एडवाइस करूंगा कि पहले आप जरा वेरीफाई कर लें. जो कोई भी इस फील्ड में आना चाहता है, पहले ये कंफर्म कर ले कि उसका इंटरेस्ट इस फील्ड के अंदर है, या वो सिर्फ जो है शौकिया जिसे कहते हैं ना, शौक है और वो आना चाहता है. तो उसको खुद ही समझ लग जाएगी कि उसको जो है जब वो इस फील्ड के अंदर आएगा तो अंदाजा हो जाता है. बिकॉज मैं अगर इस फील्ड में आया हूँ, तो बचपन से मैं अपनी आपको स्टोरीज बताना शुरू कर दूं तो वो बहुत ज्यादा हो जाएंगी. मेरा इंटरेस्ट था इस फील्ड के अंदर, और मुझे किसी से पूछने की या किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ी थी कि यार मुझे इस फील्ड में आना है तो डू समथिंग फॉर मी. मैंने काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज, अब एक्चुअली अपॉर्चुनिटीज आर एवरीवेयर. मैं आज अपने आसपास करंट अपॉर्चुनिटीज देखूं तो मुझे 10 अपॉर्चुनिटीज नजर आए. आई हैव टू चूज कि मुझे किस तरफ जाना है. तो उनको भी अपॉर्चुनिटीज नजर आएंगी, वो जिस फील्ड में भी. इनफैक्ट अगर एक्टर, डायरेक्टर या कोई भी फील्ड ऐसी है, कोई इस डोमेन से सेपरेट भी फील्ड है, अगर उसका इंटरेस्ट है तो उसको किसी को कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती. ही और शी हैज टू फाइंड दैट अपॉर्चुनिटी एंड ग्रैब दैट. उसके अंदर आकर फिर आपने अपना एक स्कोप बनाना होता है, अपनी एक पर्सनैलिटी को डिफाइन करना होता है लोगों के सामने. तो वो फिर अगर आपका इंटरेस्ट स्ट्रांग है तो वो बहुत आसान हो जाता है. लाइक व्हाट आई हैव डन. मैं जिस मैगजीन में फर्स्ट टाइम इंटरव्यू के लिए गया, उनको अर्जेंटली एक विजुअल एडिटर चाहिए था. मुझे सिर्फ प्रोजेक्ट ऑन करना और बंद करना आता था, और मैंने जो है, उन्होंने मुझे खैर हायर कर लिया बिकॉज मेरे पास एक स्ट्रांग लिंक था जिसकी वजह से मैं वहां पे गया. बट जब मैं वहां पर मैंने जॉब स्टार्ट कर दी, सब कुछ मैंने वहां पे सीखा. मेरा इंटरेस्ट था तो मैंने सीखा. अगर मेरा इंटरेस्ट ना होता तो शायद मैं उधर का उधर ही रह जाता. एग्जैक्टली, वेल सेड. तो आपका सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस आज तक कौन सा रहा, एज ए डायरेक्टर या सिंगर या एज ए एक्टर? विच वाज द बेस्ट कैरियर परफॉर्मेंस यू कैन से? हाँ, मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूँ, अगर आप मुझे परमिशन दे दें, या मुझे इन तीनों में से किसी एक को चूज करना है. Yeah, it's your platform. Now you can say it's up to your choice. Like, which was your best career डायरेक्टर, for you? एक्टर या व्हाटएवर, मैं लर्नर कहूंगा. Okay. बिकॉज चीजें सीखने से ही, इन तीनों फील्ड्स के अंदर जो है, सीखना मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी थी. और मैं आई एम अ गुड लर्नर, मैं ये कह सकता हूँ. तो मैं Good to सारी know. चीजों को इक्वल रखूंगा, और मेरे लिए सारी चीजें इक्वल हैं. बट लर्निंग का शौक था, और इनफैक्ट राइट नाउ व्हाट वी आर डूइंग फॉर जस्ट द ब्रांड आई जस्ट डिस्कस्ड, उसके लिए भी जो है काफी ज्यादा चीजें मैंने अभी रिसेंटली सीखी हैं. R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैसे होती है, मार्केटिंग स्किल्स कब किस टाइम पे कैसे यूज किए जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको क्या करना पड़ता है, बहुत Yeah. सारी चीजें. तो ये मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी लाइफ में अगर कोई चीज
हमेशा मेरे साथ रही है, तो दैट वाज माय लर्निंग प्रोसेस। और वो भी आप कनेक्ट होता है आपके इंटरेस्ट के साथ। जबरदस्ती कोई काम भी नहीं, आप ना सीख पाते हो, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप कर लेते हो कुछ। तो ऐसे सिंगिंग आपका बेस्ट सॉन्ग आज तक कौन सा रहा है? हाँ, ऐसी चीजें सिंगर से नहीं पूछते। मैं फिर भी जो है यही कहूंगा कि मेरा बेस्ट सॉन्ग रिसेंट, जो मेरा लास्ट सॉन्ग मैंने रिलीज किया था, बेपरवाह, वो बेस्ट है। और इसलिए भी बेस्ट है क्योंकि उसमें काफी ज्यादा हर्डल्स आई थी हमें। आई वॉज इन यूएई और हमने 2 दिन लगा के शूट किया। और स्पोर्ट्स कार का हम लोग अरेंज कर रहे थे, और एकदम हमें जो है बहुत कम टाइम के लिए हम लोग मैनेज कर पाए। और इतनी पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई कि जब हम लोगों ने अपने कैमरा के अंदर कार्ड डाला तो उसने कहा कुछ और हमने एंटर कर दिया। वो एक फॉर्मेट की ऑप्शन आ जाती है, क्योंकि वी वर यूजिंग 2-3 कैमरास एट द सेम टाइम। तो दूसरे कैमरे का कार्ड एक कैमरे में डल गया, तो उसने कहा कि फॉर्मेट चेंज करने के लिए कार्ड फॉर्मेट करना पड़ेगा। तो वो गलती से एंटर प्रेस हो गया और हमारा 3 दिन की सारी मेहनत जाया हो गई। और ओ उस चीज को जो है फिर हम लोगों ने जिस तरीके से कवर किया, और जिस तरीके से लोगों ने उस चीज को उसके बाद लाइक किया, तो मैं कहता हूँ कि वो मेरा जो है सबसे बेस्ट सॉन्ग है, बिकॉज आई वॉजेंट एक्सपेक्टिंग। अब मुझे वही मैं आपको बता रहा हूँ ना कि गलतियां मैंने की बहुत है, लेकिन उसको कवर कर लिया है, तो इसलिए मुझे कभी गिल्ट नहीं हुआ कि यार मुझे वो मिस्टेक मेरे लिए आज भी भारी है मेरे ऊपर। तो इट्स नॉट लाइक तो क्यों पता है, आई ऑलवेज से माय एवरी एपिसोड, हार्ड वर्क पे बैक्स। आप मेहनत करो, हाँ आपको फल पक्का मिलेगा। एंड सी दिस वन, ये राज किसी को पता नहीं है कि क्या हो गया टुडे और पेपरवा की वीडियो पे। बट सी, देयर वाज एन इश्यू बट यू गाइस कवर अप, व्हिच इज द बेस्ट थिंग। सो विद दैट एग्जैक्ट। नोट, every person has a strength and weakness. सबके पास कमजोरी भी है और सबके पास स्ट्रेंथ भी है। सो एज ए पर्सन, आपकी कमजोरी क्या है और आपका स्ट्रेंथ क्या है? ओके, पहले मैं स्ट्रेंथ की बात करूंगा। क्या? स्ट्रेंथ ये है कि मैंने जैसे आपको बताया कि आई एम अ गुड लर्नर, और मुझे अ, हमेशा मैं कॉन्फिडेंट रहता हूँ किसी भी काम के लिए। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ये मैं नहीं कर सकता। और शायद मैंने इसीलिए काफी ज्यादा चीजें जो हैं एक साथ अपने सर के ऊपर डाली हुई हैं, और मैं अपनी पर्सनल लाइफ में नहीं इन्वॉल्व हो पाता। अगर मैं बात करूं अपनी वीकनेस की, तो मेरे आई एम काइंड ऑफ इमोशनल पर्सन। मैं जो है किसी भी चीज के साथ अपने सेंटिमेंट्स अटैच कर लेता हूँ, वट एवर, चाहे बिजनेस में भी अगर आप देख लें या अपने पर्सनल लाइफ में भी देख लें। तो जब सेंटिमेंट्स आपके किसी चीज के साथ अटैच हो जाते हैं, तो वो फिर ऑटोमेटिकली आपको नुकसान उठाना पड़ता है उस चीज का, क्योंकि थिंग्स आर नॉट इक्वल एवरी टाइम ना, अप्स डाउन आते जाते हैं। तो वो सेंटिमेंट्स की वजह से मैं हमेशा उन चीजों को फील कर रहा होता हूँ, जबकि मुझे नहीं करनी चाहिए। ये मैं बिजनेस की आपको बात बता रहा हूँ। मैं अगर किसी एक, फॉर एग्जाम्पल हमारा एक डिस्ट्रीब्यूटर है, छोटी सी बात बताने लगा हूँ, वो मुझसे स्टॉक नहीं लेगा या हमारे ब्रांड को जो है वो मार्केट में नहीं लेकर आएगा, तो वट एवर की कोई दूसरा आ जाएगा, लेकिन मैं उस चीज को फील कर जाता हूँ, बिकॉज मैं Yeah, अपने that's वर्क true. एनवायरनमेंट के अंदर, इवन विद माई टीम, विद माई जितने मेरे कोलीग्स हैं, सबके साथ मैं, मेरे सेंटिमेंट्स अटैच होते हैं। मैं बहुत ज्यादा पर्सनली इन्वॉल्व होकर काम कर रहा होता हूँ, जैसे कहते हैं सारा माइंड उस चीज पे। तो ये मेरी वीकनेस। Well said. Now we are ending to our segment number one, that is connect to yourself. Really, Aslan, it was amazing to know so much thing about you. Yeah, you're right. थैंक यू, Emotional getting थैंक यू। attached to things is not easy to come up, but as you are in which field of business, you have to deal everything without emotion. लोगों को आप दिखाना है कि आपके पास emotion नहीं है, but when it comes to when you stay alone, when you stay separate, all emotion comes like a mixed emotion. And now we एग्जैक्टली। will be moving to our segment number two, that is connecting with people. In this segment is one of my favorite segment because हमें पता चलता है कि आप लोगों से कितना connected हो and how is the things around you. So with that note, now we'll take a short break. Stay tuned with us. We are in conversation with Aslan from Pakistan, who is not only a youngest director in Pakistan, but also a singer as well as now a businessman. Stay tuned with us. We'll be back after a short break with our segment number two.
after a short break. We are in conversation with Arsalan from Pakistan, who is excited with our segment number 2, and he really doesn't know there's a surprise waiting for him. Before moving to your surprise, Arsalan, we would like to know that some of your few questions. The first thing, how do you connect to the people around you? आप कैसे connect करते हो लोगों के साथ? In my professional or personal life? Both. How do you connect people? Let's talk about personal life, I think. उसमें ये है कि मेरे लाइफ में बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके साथ मैं कनेक्ट हूँ. एज आई मेंशन्ड इन माय प्रीवियस सेगमेंट कि मैं थोड़ा सा सेंटी किस्म का बंदा हूँ, और मेरी तो पहले जो है एक वीकनेस और भी थी, लेकिन अब मैंने उसको बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लिया है कि मैं एक्सपेक्ट कर लिया करता था बहुत कुछ. मेरी एक्सपेक्टेशंस जो थी वो बहुत ज्यादा, मतलब यार अब ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, वो अब मेरे लिए ये करेगा, मैं उसके लिए वो करूंगा एंड ऑल दैट. लेकिन फिर लाइफ में काफी ज्यादा चीजें ऐसी सीखने को मिली कि मुझे पता लग गया कि डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन. तो मैं अभी भी आई एम अ काइंड ऑफ इमोशनल पर्सन, तो इमोशनली मेरे अटैचमेंट कुछ ज्यादा हो जाती है मेरी पर्सनल लाइफ में. जो भी लोग हैं, चाहे वो मेरे फ्रेंड्स हैं, चाहे मेरे सिबलिंग्स हैं, चाहे व्हाटएवर. सो ये है कि सेंटी बंदा आपके आगे बैठा है. You're right. Not only you, I can connect you very well because मुझे भी लोगों से ज्यादा expectation बहुत होता है, खुद से भी ज्यादा. That I think they will think double than me, but in the reality, it's not that. You have to think I about guess yourself. Yeah, मेरी because लाइफ में yes, I got this thing from my mother actually. मैं वो अभी भी उनके अंदर ये चीज है. She always planned for future, और वो ऐसी चीजें प्लान कर लेती हैं कि उससे ऐसा कर लेंगे, फिर ऐसा कर लेंगे, फिर वैसा कर लेंगे. वो जब मैं उनको अक्सर कहता हूँ कि मामा जी, हौसला हौसला, स्टेप बाय स्टेप चलें. आप एज्यूम करेंगी, अगर वो चीज नहीं होगी देन यू गेट डिसअपॉइंट. तो अगर yes, आप क्यों ना अभी से एक्सपेक्ट ही ना करें ताकि आपको डिसअपॉइंट ना होना पड़े. अगर वो चीज हो जाती है सो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप इमोशनली अटैच होकर आप प्लान इस तरीके से चीजों को कर लेंगी तो वो फिर डिसअपॉइंटमेंट जो है ना, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम करना शुरू कर देती है. तो ये शायद इनहेरिटेड चीज है मेरे अंदर. with that note, our next question is, आपने अपने अम्मी अबू से ऐसा क्या सीखा जो अभी भी अपने आप लाइफ में अमल करते हैं? Like, what are the things which you have learned, especially from your mother and from your father? ओके, अगर मैं अपने मदर की बात करूं तो उनसे मैंने सीखा कि निभाया कैसे जाता है. कोई भी रिलेशन हो, हाउ टू डील विद दैट, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी होता है. चाहे वो आपकी फ्रेंडशिप का रिलेशन है, चाहे वो आपके कोई भी जो है रिलेशन को आपने डील किस तरीके से करना है, ये मैंने अपनी मदर से. और मेरे पापा से मैंने जो सीखा है कि मेहनत कैसे करते हैं, बिकॉज उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल की है. और मैं हमेशा अल्लाह से दुआ, मेरी प्रायोरिटी, कहते हैं ना कि एक इंसान की विश लिस्ट होती है, तो मेरी विश लिस्ट के अंदर भी एक जो है, मैंने चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर दिया है कि सबसे पहले ये, सबसे उसके बाद ये, उसके. तो मेरी सबसे इस टाइम पर प्रायोरिटी में यही चीज़ है कि मैं अपने पापा को इस तरीके से देखना चाहता हूँ कि वो ये कह सकें कि यार अब वो रिलैक्स करें और मैं हूँ, मैं सारी चीज़ों को देख. तो ये है. Wow, amazing, Arslan. And I pray not only today, in the future, inshallah, you will make them definitely proud. Not only them, entire circle all around. And then Inshallah. we'll be having our season 2, where we will be connecting with you when you are more progressed. I hope so. Inshallah. Inshallah. With that note, my next question would be, it's not that कि हाँ सारे आपके आसपास पॉजिटिव हैं, सब आपको तारीफ करते हैं, नहीं, बहुत लोग भी हैं आपको नेगेटिविटी भी करते हैं, आपको यू नो नीचा दिखाने के लिए, like they'll try to pull you down. So how do you deal with such people? मैं सबसे पहले ये, इनफैक्ट मैं अपने
सिर्फ बहन भाइयों को भी यही समझाता हूँ कि अगर कोई बात आपके बारे में कोई नेगेटिव करता है तो पहले देखें कि उसकी अपनी पर्सनैलिटी क्या है। स्पेशली आपको पता है कि आजकल फैमिलीज में ये चीज बहुत कॉमनली पाई जाती है कि उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया। हाँ। तो अगर तो उसकी पर्सनैलिटी एक ऐसी पर्सनैलिटी है कि हम उससे ये चीज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यार उसने ये चीज क्यों कही है मेरे बारे में, तो हमें उससे मैं तो उसके साथ बैठूंगा, मैं उससे बात करूंगा, मैं उससे पूछूंगा कि यार आपने ये चीज कही है, आई नीड प्रॉपर एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। हो सकता है कि आपको कोई गलत फहमी हो और मैं उस चीज को एक्सप्लेन कर सकूं, लेकिन इफ आई थिंक कि दैट पर्सनैलिटी डिजर्व दिस, वो उसने अगर मेरे लिए ये चीज कही है तो वो 10 बंदों के बारे में और भी कहता है, तो आई डोंट केयर। कली वाली। यही चीज है। Oh, that's great to know. हाँ ऐसा होता है ना। पहले I used to think a lot, but अभी जब मैं देख रहा हूँ when I started this concept and when I started meeting people, I'm learning so much that अभी भी मैं कहता हूँ भाई कुछ कहते हैं कलियू वाली बात में जा रही तो कौन सोचता है। As long as you are correct, as long as आप सही हो, that's it. So with that note, I want to know that अगर आपके इंटरव्यू कोई देख रहा है जो आपसे बहुत connected है and you're missing that person so much, who will be that person? आप उसको क्या कहना चाहेंगे? ओके। मैं मैं एक्चुअली जब भी आपका कोई भी क्वेश्चन होता है ना तो मैं मेरे सामने दो चीजें आ जाती हैं, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल। तो आप ये भी चीज बता दें कि इज दैट फॉर प्रोफेशनल लाइफ या पर्सनल लाइफ? Anyone whom you are missing so much that आप उनसे like कुछ कहना चाहते हो through इस interview, like कोई है जो आपके जिंदगी में it's very important मुझे and you're missing नाम so लेना much. मेरे लिए कोई जरूरी तो नहीं है ना? It's up to you. It's your call, your platform. So it's your call. If you have to take the मैं name, बस यही मैं जो है किसी एक पर्सनैलिटी का नाम नहीं लेना चाहता। मैं बस यही कहूंगा कि वो जो कोई भी है, वो मुझे जब अगर देख भी रहा है तो इंशाल्लाह आई एम डूइंग वेरी वेल एंड आई डू इट। यही चीज है और वो समझ जाएगा आगे से ये बात। okay, well said. Now, as I mentioned, there's a surprise for you in this element to play for you, and I hope you will love it. They did really hard work for this segment because that's one of the favorite segments. So let's play. ओके। Hello, my name is Adil, and I'm a police officer in Lahore, serving the nation for 4 to 5 years. So, if I will talk about the Aslan, then I know him from last 4 to 5 years. We worked together, we lived together, even we cheered together. We have a very, very pleasant memories with each other. So, as I know him about, he was a very hardworking, very punctual. Even he worked late till the night. So that is the reason he is in this position. So I am very happy to see him, to see his, position. So my well wishes are always with him. So Aslan, grow up like this. I am very pleased to see your interview. My best wishes are always. Thank you. Allah Hafiz. Bye bye. I love you. Assalamu alaikum, Arsalan. I'm very pleased to know about your progress and very good luck for your future endeavors. Darling, very happy for you. Good luck. who's that? Aman Chaudhary. The second one. I think I'll let you know later. I have forgot also. साथ साथ जानता हूँ और ये मेरे उन कुछ चंद दोस्तों में से जिनको मैं भाई कहता हूँ, मतलब बड़े भाई, और बाकी में वो छोटे भाइयों की तरह ट्रीट करते हैं। हमने बहुत से शोज इकट्ठे किए और काफी कुछ मुझे इनसे सीखने को भी मिला। मतलब बात मेरे भाई को कामयाब करें। So what did you want to say to all of them? There were so many of your friends who wants to say so many things to you.
थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग, स्पेशली जो पहले वाला आदिल ने कहा, आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग कि वो इस तरीके से मुझे रिस्पॉन्ड करेगा। एंड रियली थैंक्स अ लॉट। जो भी इन्होंने मेरे लिए कहा, मेरे लिए इट्स एन ऑनर फॉर मी टू बी वेरी ऑनेस्ट। और ये चीज, एंड आई रियली लाइक दिस सेगमेंट टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे ये आपका सेगमेंट जो है बहुत अच्छा लगा है, और ये एक बड़ी अच्छी चीज है। मैंने ऐसी चीज पहले नहीं देखी कहीं पे भी, किसी भी शो में। तो मुझे पता है कि ये कोई भी यहाँ पे आके बैठे, और वो जब आपने मुझे बताया कि बहुत सारे जो है मेरे फ्रेंड्स ने मेरे बारे में कुछ कहा है, तो वो आई वाज लाइक कि जल्दी जल्दी बस आए मेरे सामने, मैं सुनना चाहता हूँ। एंड थैंक यू सो मच, आपने मेरे लिए इतनी मेहनत की, और ये मेरे लिए एक वाकई बहुत बड़ा सरप्राइज था। रियली थैंक्स अ लॉट, इट रियली मीन्स अ लॉट फॉर मी। And for me, this segment, why I love it, because especially I'm very connected to this segment, क्योंकि it, see, people in front of you बहुत कुछ कहते हैं, but वो लोग क्या कहते हैं जो आपके पीठ के पीछे, that's most important। और जब वो जानते हो ना, आपको दिल में और खुशी होते हैं, हाँ मैं शायद इसके बारे में ऐसा सोच रहा था, but see this person says something। So anything आप उनको कहना चाहते हो अपने दिल से, like anything you want to say to them, this is the right time to say। मैं यही कहूंगा कि आई लव देम सो मच। मैं, ये मेरी लाइफ का पार्ट भी हैं, और आगे भी इंशाल्लाह ताला हम लोग साथ रहेंगे। और बस यही वो चंद लोग हैं, जिस तरह मैंने आपको शुरू में अपने फर्स्ट सेगमेंट में बताया कि आई एम अ काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट बोथ। तो जो मेरी पर्सनल लाइफ है उसके अंदर ये लोग हैं, और बहुत कम लोग हैं। ऐसा नहीं है कि ढेर लगा हुआ है, जो है टाइम मैनेज करना नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो लोग हैं बस मेरे लिए वही हैं। The least, before ending this segment number 2, I want you to sing a song for them, because we know you are a great singer and they have a request that to say a few lines, which is one of your favorite songs. So, कुछ गाएंगे and for them? बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि ये मैं अपने फ्रेंड्स के लिए जो है गाना चाहता हूँ। मेरी जिंदगी सवारी, मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के यारा तेरी यारी को। मैंने तो जहां माना, याद करेगी दुनिया, तेरा मेरा अफसाना, तेरे जैसा यार कहाँ। I think these lines are enough for them. Wow, amazing. I have come across with one of your song, मैं फिर भी तुम्हें चाहूंगा। I would love you to sing that song. Really, it is one of the favorite songs. And the way you sang, it was amazing. Can you just मैं, sing 2 to 3 lines? क्या मैं फिर भी तुमको चाहूँ मैं। Yeah. मैं इसका अंतरा जो है मुझे याद करने थे, इसका अंतरा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। तुम मेरे हो इस पल मेरे हो, कल शायद ये आलम ना रहे, कुछ ऐसा हो तुम ना रहो, कुछ ऐसा हो हम ना रहे, ये रास्ते अलग हो जाएं, चलते चलते हम खो जाएं, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, इस चाहत में मर जाऊंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। Wow, amazing. Round of applause. Really, it was amazing. Last Thank but you, not thank least, before ending this segment, कोई आपका वीडियो, कोई आपका म्यूजिक आने वाला है? Upcoming, something is there? you. Yes, actually there are many. मैं एक सेगमेंट प्लान कर रहा हूँ, जस्ट लाइक यू। मेरे कुछ अनप्लग्ड ट्रैक्स हैं
तकरीबन 7-8 तो अब तक हो चुके हैं. Audios are ready, लेकिन I'm just looking for some free time so that I can prepare the video for that. So inshallah, in a very less span of time, मैं कुछ एक ऐसा segment करूँगा कि जिसमें in a month जो है at least there must be 2-3 videos जो कि unplugged होंगी. और इंशाल्लाह मैं आपको तब याद भी करवाऊंगा और आपने जरूर बताना है कि how was that. As don't move anywhere, we'll be back with the segment number 3 that is also fun excitement, that is rapid fire. You're in conversation with Aslan from Pakistan. Stay tuned with us only on Chat with Khwaish, your wish, sponsored by Noor the Distributor. Welcome back after a short break. We are in conversation with Aslan from Pakistan, the youngest director, a Bravo singer, and now we are moving to our segment number 3, that is the rapid fire. Remember, Aslan, इसमें आपको जल्द से जल्द आंसर करना पड़ेगा, and if you're delaying, you will lose the hat. So better to answer very fast. Okay, the first I'll try question. my What is are you excited now? Shall we start? Exactly, yes. Okay. What was the first music you got? The first music that I got. Yeah. Is For that my singing. own music you're talking about? Any. Any? Okay. A very. Don't ask any music questions with me because तेरा होने लगा हूँ. Okay. How do you got inspired by making this career? Asadul Haq. Okay. If you would like to know about creativity, means अपना कुछ बनाना, so what would you prefer? Is it music? Is it movie? Is it acting? कौन सा? Actually, I have two answers for this. Okay. Yes, you if can. it's about my personal thing, so I'll definitely go for music. And Okay. if it's about my professional thing, so I'll definitely go for some new products. Okay. If you got a chance to collaborate with one of the actor, किसके साथ आप collaborate करने के लिए agree हो? With whom? Imran Ashtar. Wow. If you got a chance to perform with a album, so which director will you choose to perform? Definitely my favorite one, Asadul Haq again. Wow. What do you think? आपके अंदर सबसे useless, sorry to use that word, talent. What do you say? कौन सा waste है आपके अंदर? Like which talent is not at all required? मैं रात को सोते वक्त कार्टून्स देखता हूँ. Amazing. Okay. ये talent. Do you sing while you are in shower? Sorry? आप गाते हो नहाते वक्त? Bathroom singer. Are you a bathroom singer? No. Okay. No. सबसे best advice आपको किससे मिला? Like what advice have you received so far? Best advice. My chachu. Okay. What is your next project? There are actually a lot of projects, but the project that we have already discussed, the segment, the music segment that I was talking about. Unplugged. Inshallah. Yeah. Okay. If you are getting 3 words to describe yourself, so what are the 3 words about you? 3 words. Soft, humble, senti. What is the most thing you're afraid of? आपको किस चीज से ज्यादा डर लगता है? पानी से. पानी. Okay, waterphobia. आपका सबसे बड़ा सपना क्या है? जहाँ पे मैं खुद को देखता हूँ बस जल्दी से वहां पहुंच जाऊं. वो कहते हैं ना, इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है where you see yourself after 5 years. So where I see myself, I really want to go there as soon as possible. Inshallah. And अगर आप समंदर में like कोई वेकेशन में जा रहे हो, तो आप किसके साथ जाना ज्यादा पसंद करोगे? Among your friends. कौन सा friend होगा? No, family. Only Sorry? family. Family. Okay. Family. Which place is the always you wanted to travel?
टर्की एक्चुअली। ओके, अगर आपको एक क्वालिटी अपने अंदर चाहिए तो क्या क्वालिटी होगा? मैं किसी भी चीज को जो है इग्नोर कर दिया करूं जो दैट इज कनेक्टेड टू माय हार्ट। आई वेरी रियली गुड। नीड दिस क्वालिटी। आप अपने आप को अगले साल पे कहाँ देखते हो? व्हाट यू आर होपिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर? इंशाल्लाह मैं अपने बहुत मसरूफ देखता हूँ, बहुत बिजी देखता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर। और बिजी के साथ साथ मैं खुद को एक मेरी जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया होगा। आई एम वेरी श्योर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने लास्ट टाइम कभी रोया? When was the last time you cried? Is this compulsory to answer? It's rapid fire, so like, when did you cry last time? I cried last time. Did you cry? I don't think so you cried. नहीं, मैं रोया हूँ। सही वाला जो रोया हूँ, it's like 7-8 months before. Oh, that's long back. Okay. What makes your day complete? Like you see, आज मेरा दिन सबसे best है. What makes you say that? Sorry, I repeat the question, please. How do you feel कि हाँ, today is my perfect day? How do you understand that? Yeah, if I achieve my target, so that is my perfect day. Okay. अब वो पता For a है, रोज relationship. मेरे लिए targets होते हैं, especially. Okay. So if you have something advice for a healthy relationship, आपका advice क्या होगा? Have patience and be positive. Wow. When was the last time you text somebody? Take somebody Text. like किसको आपने last time text किया? अभी last time text किसको किया? हाँ. This is so personal. अब मुझे नहीं याद मुझे नहीं पता मैंने लास्ट टाइम किसको किया। I have to check my inbox actually. Okay. What is the one thing surprise you like a lot? कि हाँ, कि कोई आपके लिए कुछ करता है तो क्या surprise do you love so much? कोई भी ऐसी चीज जो मुझे अच्छी लगे, कोई भी। Okay. एक्चुअली ये भी बल्कि बहुत मैंने स्टूपिड सा आंसर दिया। केयर करना जो है, किसी की भी केयर करना, सरप्राइजेस जो है वो डिफरेंट वेज से किए जाते हैं। तो सरप्राइज कोई भी किसी भी तरह का हो, मेरे लिए वो हमेशा अच्छा ही लगेगा। Okay. If you get a chance कि आप एक ये सारे इंडस्ट्री को छोड़ के दूसरा इंडस्ट्री में जाओ तो आप कौन सा इंडस्ट्री सेलेक्ट करोगे? फूड इंडस्ट्री। Food. Are you foodie? नॉट दैट मच, बट जो डोमेन है हमने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है, दैट रिलेट्स टू ऑर्गेनिक फूड, सो आई एम ऑलरेडी इनटू दैट, सो डेफिनेटली जो है मैं इसी को फोकस कर। If you got a chance to advise everyone who is connecting right now to you, तो आप उनको क्या नसीहत दोगे? मैं वही दूंगा कि सब्र करें, पेशेंस लेवल हमेशा अपने अंदर रखें, सक्सेस आपको खुद आकर गले लगाएगी। कभी भी बहुत जल्दी डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए। Inshallah, it's very hard to say that, but yeah, we should not get disappointed. With that note, we are ending our segment number 3, that is rapid fire. And I know you did okay, but fine, that's okay, not an issue. So we'll take a short break and we're moving to our last segment of the show. And I hope you will love that segment. So stay tuned with us, don't move anywhere. We are in conversation with Arsalan from Pakistan, and we'll be back after a short break. We are in
conversation with Aslan from Pakistan, and we are moving to our last segment. I really don't want to end this episode. It was very fun, and especially with you, it was amazing. So our last segment is the main concept of our show. What is your khwahish that you want to get fulfilled? And inshallah, we pray it will get fulfilled. So आपका ऐसा क्या ख्वाहिश है जो आप चाहते हो कि फुलफिल हो जाए जल्द से जल्द? मेरी ख्वाहिश ये है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे हम लोग एक्चुअली, जो मैं पर्सनली फील करता हूँ, मैंने ये बहुत देर से मैं इस पर, इनफैक्ट आई एम वर्किंग ऑन दैट, कि हम लोगों को क्वालिटी एजुकेशन दे दी जाती है, लेकिन हम लोगों को जो एक हमारा लाइफस्टाइल है, वो हमारा इन्वायरमेंट, हमें इन्वायरमेंट की तरफ से ही मिलता है। बहुत सारी चीजें हम लोगों में लैक करती हैं। शायद दिस इज द रीजन दैट हम लोग इतना ज्यादा डेवलप नहीं हो पा रहे कंपैरेटिवली टू द अदर कंट्रीज, कि हम लोगों का इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा फर्क है। आई गेस कि मैं खुद पर्सनली इस पे काम करना चाहता भी और इंशाल्लाह ताला करूंगा भी, कि बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं जो कि मोटिवेटर्स हैं, स्पेशली जो कि लोगों को, स्पेशली जिस तरह कासिम अली शाह है, मैं इनसे बहुत कुछ सीखता हूँ, और मेरे एक कह लें कि मेरे लाइफ के लर्निंग प्रोसेस में इनका बहुत ज़्यादा हाथ है। तो इस तरह का एक सेगमेंट जो है सबके लिए होना चाहिए, कि लोग अपने लाइफस्टाइल पे फोकस कर सकें क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ। लाइफस्टाइल पे कोई फोकस नहीं करता, और ये चीज़ हम लोगों में बहुत ज़्यादा लैक करती है। मैं क्योंकि डिफरेंट इन्वायरमेंट्स देख चुका हूँ, मैं बोर्डिंग लाइफ में रहा, वहाँ पे मुझे डिफरेंट इन्वायरमेंट मिला। मैं जब लाहौर आ गया और यहाँ पे बिजनेस में चला गया, तो वहाँ पे मुझे डिफरेंट इन्वायरमेंट मिला। यूनिवर्सिटी लाइफ में डिफरेंट इन्वायरमेंट मिला। उसके बाद जब मैं घर, बेसिकली मेरी फैमिली जो है वो नारोल से बिलोंग करती है, वहाँ पे लोगों का इन्वायरमेंट डिफरेंट है। तो इसलिए मैंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा डीप ऑब्जर्व किया कि हर जगह पे लोगों की जो है परसेप्शंस चेंज होती हैं, लोगों के पर्सपेक्टिव्स डिफरेंट होते हैं, जबकि थॉट तो एक जैसी होनी चाहिए ना, कि जो जिस तरीके से उनका थॉट प्रोसेस है उस पे लोगों को फोकस करना चाहिए। शायद बहुत सारे हम लोगों में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो है, मैं आई रियली वांट कि मैं इस चेंज में किसी तरह से मेरा कोई सपोर्टिव रोल आए, चाहे मैं किसी एक के साथ बैठकर ही उसको क्यों ना, स्टार्ट लेने से कहते हैं ना, स्टार्ट इतने से भी लिया जा सकता है। तो मैं खुद चाहता हूँ कि लोगों को ये बता सकूं कि हम लोग क्वालिटी एजुकेशन ले तो रहे हैं, हम लोग डिग्रीज भी ले रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर जो सबसे चीज बड़ी लैक कर रही है वो है कि हमें ये नहीं पता कि हमारा लाइफस्टाइल किस तरह का होना चाहिए, क्योंकि लाइफस्टाइल ही आपके कैरियर की पहली सीढ़ी है। हमें पता चल जाता है, मुझे पता है मैंने 5 साल बाद कहाँ तक जाना है, बिकॉज मैंने अपना लाइफस्टाइल जिस तरह का प्लान किया हुआ है, मेरे लिए इजी है। यहाँ पे किसी को भी ये चीज नहीं बताई जाती, तो ये है मेरे लिए। Not the least, Mr. Arsalan, I don't want to end this segment, but at the end we have to end this episode. So कुछ कहना चाहेंगे आप हमारे व्यूवर्स को जो आपसे कनेक्ट कर रहे हैं इस बार इस एपिसोड में? एनीथिंग यू वांट टू से टू देम? हाँ बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं अगेन थैंक यू सो मच। आपने ये जो एक सेगमेंट, जितनी मेहनत से आप इस पे काम कर रहे हैं, और ये इंटरटेनमेंट के साथ साथ बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन कर देता है। चैट विद ख्वाहिश जो है, मैं इस पर जो है डिस्कस करना, मैं 1 घंटा बोल सकता हूँ इस टॉपिक पे। ख्वाहिश जो है स्पेशली, जो कि बहुत सारी चीजें हैं, ये हमारी लॉन्ग डिस्कशन हो जाएगी। एंड एट द एंड मैं अपने जो व्यूअर्स हैं, एक तो जो भी हमारे सेगमेंट को देखेगा, मैं उनके लिए भी जो है थैंक यू उन सबको भी कहना चाहूंगा एडवांस में ही। और प्लस जो इस टाइम पर एक ऐसी चीज है जो कि मैं शो के एंड पे आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस चीज पर भी बहुत हम लोग जितना अवॉइड करना चाहें करें। इंसान के अंदर बहुत सारी खामियां होती हैं, नेगेटिविटी, बहुत सारी कमजोरियां होती हैं। बजाय उसको डिफेंड करने के, आई गेस के हमें उसको कंसीडर करना चाहिए और उसको इम्प्रूव करना चाहिए। तो ये मेरा एक लास्ट, आज जो भी हम लोगों को देखेगा, तो बजाय हम अपनी वीकनेसेस को, अपनी गलतियों को, अपनी
जो हमारे एक अंदर रह जाती है, समहाउ मेरे अंदर है, बहुत सारे लोगों में होती है, उसको हमने छुपाना नहीं है। हमने उस पर उस चीज को लेकर डिफेंड नहीं करना खुद को किसी के सामने। हमने उसको कंसिडर करना है और उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है हम सबको, और हमें करना भी। तो ये एंड ऑफ द होल सेगमेंट, होल शो मैं जो है आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। Yeah, I hope we will be back soon with you in the segment number season 2 of Chat with Khwahish Your Wish. And Inshallah, for sure. I hope your all unplugged videos, everything is success. And stay tuned, keep connected with us because that's the most important of the show. Connecting all around and connecting people. So thank you so much, Arsenal. It was amazing to have you on our show. Thank you so much to watch this episode today, and it's been really amazing to have Aslan on our platform. As you have seen, the way he has inspired to us, the amazing personality I have met across so far as of now. Remember, everyone has a story to tell. His thoughts were so pure-hearted. The way he wants to get elaborated is so amazing. His khwahish is nothing but changing the mentality and the lifestyle of the people, which is really, really important. Everyone has so many thoughts. Me, you, everyone is different, but such thoughts should never hurt anyone's feeling or anyone's sentiments because everyone is a unique and special person. We hope his khwahish and we should support his such khwahish, and I hope his khwahish always get fulfilled as soon as possible. With that note, as I always say in my all the blogs, all the episodes, please do wear masks, sanitize yourself, maintain social distancing, stop gathering as much as you can. Please stop this pandemic to get spread. It's because we are the right person who can control it. And always support your friend Liars and everyone who is supporting us. Till then, it's me signing out from this episode, and we will be back next week, same time, same channel, same show, with another amazing personality who will not only inspire us but also will reveal some raz of his only on Chat with Khwahish Your Wish, sponsored by Noor the Destiny Hope. Till then, it's me signing out Muhammad from this show. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.